जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है टेट्राहेड्रल, और एक ये बहुत ही बड़ा सा पॉलीमर है, और उस पॉलीमर का रिपीटिंग पोर्शन जो है वो SiO2 है, इसलिए उसको SiO2, एक्चुअली इसका फॉर्मूला लिखते समय ऐसा लिखना चाहिए SiO2 n टाइम्स, बट ऐसा कोई लिखता नहीं है, एंड हेंस वी से दैट सिंस इट इज अ पॉलीमर, कई सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जॉइंट होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना है, सो इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। लिखिए, नेक्स्ट पेज पर आगे डिस्कशन करता हूँ। सर और यहाँ पे वन प्लेन पे ही होगा जो बॉन्ड बनेगा? सर जो भी बॉन्ड्स बन रहे हो सब एक ही प्लेन पे बनेंगे? टेट्राहेड्रल। ओके सर। So this you have written is extra means extra topics, right? Not extra from portion, right? It is there in the portion. Yeah. चलो मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ। The second type of compounds are graphite and diamond. Both belongs to carbon. They are allotropes of carbon, but their structures are different. And due to difference in structure, graphite is good conductor of electricity, whereas diamond is not. Graphite is good conductor of electricity and diamond is not. Why? Because when we will observe the structure of graphite, you might have studied in your lower standard, it forms hexagonal ring structure. Have you studied that? Hexagonal ring structure. Yes. And there is a double bond between the carbon and carbon. All carbons are present. And since one carbon is connected to 3 other carbon, so connectivity is 3, and hence we say that all carbon are sp2 hybridized. When we talk about for diamond, आपने ये भी पढ़ा है, diamond is the hardest form. Why it is? Because in diamond, carbons are connected with each other through sp3 hybridization.
So if we discuss here sp3 hybridization, that means here there will be single bond, and it is a giant covalent structure. So it will be difficult to break this single bond, giant structure. And hence all the carbons are sp3 hybridized. Since electrons are not free to move from one place to another place, and hence diamond is a bad conductor of electricity because of the same reason. Electrons free nahi. ट्राइंगुलर लिखो या ट्राइगोनल लिखो, एक की बात है। और PF4 पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, देन PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और CO3-2 में खाली ट्राइगोनल प्लेनार। वेवी लाइन रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, जिगजैग बनना। चलो कंप्लीट करो, देन विल डिस्कस सिलिकॉन कार्बाइड। सर यस सर, यहाँ पे सर जो आपने sp2 sp3 निकाला है सर, यहाँ पे ये शेप से निकाला है या फिर सर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं? नंबर ऑफ कनेक्टिविटी से निकाला। ये सर कार्बन में ये सर समझा सर। Then the next molecule is silicon carbide. This is also the hardest form. यह भी एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जो बहुत ही हार्ड, because this is also a polymer जिसमें सिलिकॉन 4 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है थ्रू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो अगर मैं आपको पूछूं हाइब्रिडाइजेशन, तो हर एक कार्बन और सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो ये है सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर। मैंने आपको एक बेंजाइन वर्ड यूज किया था कभी, शायद ही किसी को याद। Yes, sir. Use करता। बेंजाइन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यह बहुत ही कम समय के लिए प्रेजेंट होता है। इट एग्जिस्ट फॉर वेरी 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 शॉर्ट टाइम, because the structure what we will be drawing, it is highly unstable structure, so it is used as a reaction intermediate in the organic chemistry. Organic chemistry में थोड़े समय के लिए यह रिएक्शन में यूज होता है, hence it is reaction intermediate. होता क्या है यहाँ? Here we have a benzene like this. Benzene has alternate double bond. यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन है, here also hydrogen is present. Now the carbon and hydrogen is having sp2 and s overlap. अब यह जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, that will undergo homolytic fission. होमोलिटिक फिशन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो एक इस कार्बन के साथ जाएगा और दूसरा इस कार्बन के साथ चला जाएगा, एंड बोथ द ऑर्बिटल्स आर sp2 hybridized. This is also sp2, this is also sp2.
सो बेंजाइन के केस में ये डबल बॉन्ड का पोजीशन में थोड़ा चेंज कर देता हूं। ऐसे आप कहां भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ बेंजाइन एक sp2 अवेलेबल है विथ 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा sp2 भी अवेलेबल है विथ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, दैट इज अगेन अ पाई बॉन्ड। लेकिन वह पाई बॉन्ड का स्पेशलिटी है दैट इज फॉर्म बिटवीन sp2 एंड sp2। अभी तक हमने यह लिखा था कि जो पाई बॉन्ड है वह जनरली फॉर्म होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में, बट दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट इन विच पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन sp2 sp2 ऑर्बिटल्स। अब रिंग में ट्रिपल बॉन्ड होना क्या पॉसिबल है? तो आंसर है उसका छोटे रिंग में पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड होने से हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, इस कार्बन का और इस कार्बन का, एग्रीड। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 180, और 180 बॉन्ड एंगल बनाने के लिए ये सब के बीच में बॉन्ड एंगल है 120, बिकॉज द रिंग के ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सो बॉन्ड एंगल विल बी 120। मतलब ये कुछ इस तरह से था। अब आप उसको सीधा कर दोगे तो भाई ये स्ट्रेच होगा ना, तो स्ट्रेच होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी। इसीलिए रिंग, छोटे रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड का होना थोड़ा सा डिफिकल्ट केस माना जाता है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, सो बॉन्ड एंगल 180 हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन यह जो बेंजाइन नाम का कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट होता है, और वो भी रिएक्शन के बीच में आता है, आएगा, काम करेगा, खत्म हो जाएगा। हेंस वी कॉल इट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसको सेपरेटली प्रिपेयर करके नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। सो ये हुआ सिलिकॉन कार्बाइड और बेंजाइन का कॉन्सेप्ट। जरा लिखिए सभी स्टूडेंट्स। सर मुझे ये नहीं समझा कि सर वो हाइड्रोजन की जगह पे वो ऑर्बिटल कैसे आया। बोलो। सर मुझे ये नहीं समझा कि सर वो हाइड्रोजन की जगह वो ऑर्बिटल कैसे आया, मीन्स चेंज कैसे हुआ। क्योंकि मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, मैंने ओके बॉन्ड ब्रेक कराया। ओके सर। So sir वो ऑर्बिटल कार्बन का ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन की जगह आया। यस। ओके सर। और सर वो सिलिकॉन कार्बन एंड डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सारे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, मींस हार्ड है। नो, इट इज अ पॉलीमर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो सभी में है, लेकिन ये पॉलीमर है, लंबा चेन चलता है, उसलिए वो जाइंट हार्ड है। कोवेलेंट स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते ओके सर। सर एंड मुझे वो 180 डिग्री का लॉजिक नहीं समझा सर, कि सर बाकी के कार्बन क्यों उससे अफेक्ट होंगे। क्या बोल रहे हो? सर ये 180 डिग्री का सर यहाँ पे समझा नहीं था सर। पाई बॉन्ड बनता है सर वो समझा सर, बट 180 डिग्री कैसे वो नहीं समझा। sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? सर मीन्स सर बॉन्ड एंगल में भी सर यहाँ पे ये रहता है ना, ट्रायंगुलर 120 डिग्री। वेरी गुड। जरा नोटबुक में वो इंपॉर्टेंट टेबल निकालो। ये उसमें पहला ही है sp,
दूसरे कॉलम में तुमने ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल लिखा है, यस वहां सर। देख के बताओ क्या है बॉन्ड एंगल। सर लीनियर और डायगोनल। वेरी गुड। एक बीए करके वर्ड लिखा रहेगा, वो बीए वर्ड के बाजू में क्या लिखा है? सर 180 डिग्री। वही मैंने बोला था यहाँ, ये है अभी ऐसे 120 पे, ये दिस इज एट 120। अब तुम इसको सीधा कर दोगे, नाउ यू विल स्ट्रेच दिस, देन ओनली द एंगल विल बी 180 ना। तो ये स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? यस। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज शॉर्ट लाइफ स्पीसीज, But so वो SP क्यों बन रहा है? मींस हाँ सर वहाँ पे बिकॉज तो इट हैज ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टिविटीज टू। यस सर समझा। ठीक। और सर वो sp2 जो बना है, मींस पहले वाले में जो दो ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होकर पाई बॉन्ड बना है, वही लिखा है ना। जैसे वो समझा नहीं, मींस कैसे वो बना क्या है, नहीं समझा तुमको? मींस कैसे वो sp2 पाई बॉन्ड बन गया? दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल्स, ये दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यस। क्या लिखा है उसके नीचे? which orbitals they are? sp2 पाई बॉन्ड। नहीं, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन दिस? sp2। sp। ये दोनों ओवरलैप हो रहा है, यस सर। so that overlap will be called as which overlap? यस सर, बोलो। पाई बॉन्ड बने। यस सर, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज P4O10. The name of this molecule is phosphorus pentoxide. The structure of this is, इसका शॉर्टकट समझो कैसे ड्रॉ करो। 4 फॉस्फोरस आप इस तरह से अरेंज करेंगे, हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर लो। You have to draw one oxygen between all phosphorus. सब जगह, हाँ। It is like this. और हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O ज्वाइन कर दो। So you will be having double bond O, double bond O, double. So this is what your structure is. अगर मैं आपको पूछूं what is the hybridization of phosphorus, so it has how many connectivities? 3. Sorry, 4 connectivities. So the hybridization is sp. Check करिए। Correct. So all phosphorus are sp3. ये होता है phosphorus pentoxide का स्ट्रक्चर और उसका हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि P4O10 में P डबल बॉन्ड O कितने हैं, POP बॉन्ड कितने हैं। सो P डबल बॉन्ड O 4 है, और POP जरा मुझे बताइए काउंटिंग करके, हाउ मेनी POP बॉन्ड वी हैव? POP, phosphorus, then single bond oxygen, then single bond phosphorus. वैसे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? Everyone tell me. It is 6. Correct. So 6 POP bonds are present. चलो लिखो। अभी हम स्पेशल कंपाउंड डिस्कशन करें। That compounds will be in solid or liquid state. अगर solid और liquid state में रहा, then it exists in a different way, और उसका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। जब वो कंपाउंड गैसियस स्टेट में होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट। सो ऐसे हमारे पास 10 कंपाउंड है जो आपको लर्न करना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं
समझो ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट होगा, या तो फिर ये कंपाउंड का सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैं पेज शिफ्ट करके वो टॉपिक स्टार्ट करता। सो हियर विल राइट hybridization of compounds in solid or liquid state. एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज PCl5। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझे बताएंगे PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5? क्या मिलेगा? सर sp3d। करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, इट इज sp3d, बरोबर। लेकिन यह sp3d के लिए this PCl5 is present in a gaseous state। तो हमने जितने भी कंपाउंड्स किए वो सब में बाय डिफॉल्ट कंपाउंड वाज प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। अगर यही PCl5 सॉलिड स्टेट में रहा, if the same PCl5 is given in a solid state, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 एग्जिस्ट है PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस। दो मॉलिक्यूल्स PCl5 के लेंगे, उसमें से एक के पास Cl चला जाएगा एंड देन इट बिकम्स PCl6 माइनस और एक बनता है PCl4 प्लस। सो सॉलिड स्टेट में PCl5 यही फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, PCl6 माइनस और PCl4 प्लस। जरा आप सभी स्टूडेंट्स मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए PCl6 माइनस का एंड PCl4 प्लस का, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। कैन यू टेल मी PCl6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने शॉर्टकट में से सिखाया, sp3d2, और इसका क्या होगा sp3। तो दैट मीन्स कि अगर PCl5 सॉलिड स्टेट में है देन इट प्रेजेंट्स एज PCl6 माइनस PCl4 प्लस, और सॉलिड स्टेट में उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 एंड sp3। तो देखो डिफरेंस आ गया। अगर कंपाउंड गैसियस स्टेट में है तो जो हमने शॉर्टकट किया एज इट इज वैसे ही आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अगर कंपाउंड सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट कौन से फॉर्म में होता है, और वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो आपको याद रखना है। ये जितने भी मैं रिएक्शंस लिखूंगा अभी, इस टाइप के रिएक्शंस, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट से आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल लो। जैसे PCl6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट से निकालो, हो जाएगा। PCl4 प्लस का निकालो, आंसर आ जाएगा। बट PCl5 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट ही इसी फॉर्म में होता है। तो ये सर्कल में किया हुआ रिएक्शन, ऐसे सभी रिएक्शन जो हम लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, और फिर आप वो हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको लर्न करने वाला पॉइंट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो जरा लिखो, नेक्स्ट पेज पर हम दूसरे कंपाउंड शुरू करते हैं।
Now I am shifting this page. PBr5 in solid state. It exists as सर आपने सॉलिड PBr4 plus Br minus. इसमें जब हम PBr4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल तो वो शॉर्टकट फॉर्म से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp. Similarly, next is Pi5. अगर वह भी सॉलिड स्टेट में होगा then it also exists as Pi4 plus I minus. तो अगर मैं आपसे पूछूं what is the hybridization of Pi4 plus, so your answer should be sp3. Next molecule, xenon का एक कंपाउंड लेते हैं, that is XCF6 solid. जब हम इसकी बात करें then this exists as XCF5 plus F minus. अब XCF5 minus plus का हाइब्रिडाइजेशन आप शॉर्टकट फॉर्म में निकालिए then it will be sp3d2. तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तभी आप उसका हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ सकते हो. नेक्स्ट कंपाउंड इज IF5 लिक्विड. अगर हमारे पास IF5 लिक्विड है then this exists as IF4 plus or second part is IF6 minus. So now if I will ask you what is the hybridization, IF4 plus का shortcut form में निकालिए then it will be sp3d, और IF6 minus का ढूंढिए then it is sp3d3. चलिए लिखिए यहाँ तक, नेक्स्ट पेज में आगे करते हैं. यस, कोई तो कुछ बोल रहा था. सर मैं पूछ रही थी जो आपने सॉलिड का पहले लिखा है वो सेम ही लिक्विड का रहेगा कि PCl5 सॉलिड स्टेट में इस तरह से प्रेजेंट होता है, लिक्विड में ऐसा पूछेंगे नहीं, जो लिक्विड में रहेगा वो लिक्विड में ही रहेगा. ओके सर. सर आई हैड अ नेटवर्क इशू, तो ये कॉन्सेप्ट छूट गया था मेरा. लिख लो. सर मैंने लिख लिया. हाँ,
जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो गैसियस स्टेट में अगर समझो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, the way in which we had found in the homework case, but in case of solid we cannot apply that because in solid state CCl5 exists in this, और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन ये वाले केस में sp3d2 and in this case it is sp3। इसमें शॉर्टकट अप्लाई करके ढूंढ सकते हो। तो वैसे हर Yes. एक रिएक्शन जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको याद रखना है, और उसमें प्रोडक्ट में आप शॉर्टकट अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ सकते हो। Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. Now I am shifting this page. Next molecule is Cl2O6 solid. That gives you ClO2 plus ClO4 minus. Now if you will find out the hybridization, ClO2 plus का sp2 है, ClO4 minus का sp3। Next, I2 Cl6 liquid. This exists as ICl2 plus and ICl4 minus. So the hybridization is sp3d and sp3d2. Next, N2O4 solid. N2O4 solid. So this exists as NO plus, NO3 minus. Here, the hybridization of NO is NSP. और NO3 माइनस का sp2 ले लीजिए। नेक्स्ट, N2O5. In solid state, it exists as NO2 plus and NO3 minus. Here the hybridization is sp and sp2. एक और लिखना है, यहां तक लिखिए, नेक्स्ट पेज पर मैं वो एग्जांपल लिखता हूं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। यस सर ICl2 का सर ICl2 प्लस का सर वो सेकंड एग्जांपल में सर sp3d कैसे हुआ? आई के पास 7 है ना, यस सर, एक और हटा दो तो सर 6 हो एक जाता है सर। बचे। हाँ तो 6 बच गए, तो 2 यस क्लोरीन सर, चला गया और बचे हुए को पैर कर लो। यस सर, तो सर 2 पेयर बनते हैं सर। 2 ही पैर बन रहे हैं। यस सर, 6 इलेक्ट्रॉन है ना सर, 2 तो Cl में चला जाता है, 1 Cl 2 Cl, और सर बाकी के 4 में से 2 पेयर बनते हैं। हाँ मैंने गलत लिखा है, आई एम सॉरी। दूसरा वाला सही है। हाँ सर, दूसरा वाला आया सर।
हाँ, प्लीज चेंज दिस एवरीवन। और कोई में चेंजेस? बाकी किसी में ऐसा कोई चेंज लग रहा है? सर अभी तक तो नहीं आया सर, पहले किसी में। ठीक है सर, लिख लो, एक और कर लेते हैं। Now I am shifting this page. We have I2 solid. So this is exist as I3 plus and I3 minus. Here the hybridization is sp3 and this is sp3d. तो इस तरह से यह टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, सॉलिड और लिक्विड स्टेट का एग्जाम। Now the next topic is called as Dragos rule. What is this Dragos rule? This is applicable only and only for group 15 and 16 elements except nitrogen and oxygen. So it is applicable for group 15 and group 16 elements. Except नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये रूल क्या कहता है? अगर 15 और 16 ग्रुप के एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या तो उससे कम है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। दैट विल बी प्योर एंड प्योर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मैं वो लिख लेता हूं पहले। तो मैं कहता हूं इफ ग्रुप 15 and group 16 elements form compound with element जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5। कौन से ऐसे एलिमेंट्स है सर? कार्बन, हाइड्रोजन, सोन। देन उसमें हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट होगा, ओनली प्योर ओवरलैपिंग इज ऑब्जर्व। Then we say that hybridization
is absent, and only overlapping of AO is observed. AO का फुल फॉर्म है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, is observed. ये है ड्रैगोस रूल. पहले आप लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर ड्रैगोस रूल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं. चलो मैं पेज शिफ्ट करूं. Now I am shifting this page. समझो ग्रुप 15 जो है उसके हम हाइड्राइड लिखते हैं. ग्रुप 15 हाइड्राइड. इसका मीनिंग क्या? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, तो उसको हम उसके हाइड्राइड नाइट्रोजन कंबाइन होगा, सो इट विल फॉर्म NH3. फॉस्फोरस से PH3, आर्सेनिक से ASH3, एंटीमनी से SbH3 और बिस्मथ से BiH3. PH3 ASH3 SbH3 BiH3. अगर मैं आपसे पूछूं अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप लोगों का आंसर आएगा sp3 बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री. लेकिन जो बाकी सब एलिमेंट्स है अगर उसमें आप ढूंढोगे तो शॉर्टकट में ढूंढोगे तो sp3 आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि इन सब में बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब यह मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. So that means there will be no hybridization.
in case of PH3, ASH3, SBH3 and BIH3. इसी रीजन से अगर आपसे पूछूं क्या PCl5 एग्जिस्ट होगा, यस, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन क्या PH5 एग्जिस्ट होगा, नहीं, तो नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। किसने कहा ऐसा? ड्रैगोस रूल ने कहा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो फॉस्फोरस का 3s का इलेक्ट्रॉन आगे 3D में जंप नहीं कर सकता। जैसे आप सभी को पता है ना फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 3s2 3p3 एंड 3d0। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो मैं कहूंगा ये डाउन वाला इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, और वो अगर आगे नहीं जाएगा तो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे, एंड हेंस PH5 do not exist. So this is according to which rule? ड्रैगोस रूल। इसी रूल को हम लोग कहते हैं ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल में ऐसा ऑब्जर्व होता है। सिमिलरली एक और केस, मैं ग्रुप 16 हाइड्राइड का डिस्कशन करना चाहता हूं। सो हियर विल राइट ग्रुप 16 हाइड्राइड। चलो लिखो जरा सब लोग ग्रुप 16 का नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करते हैं। जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द ड्रैगोस रूल एंड इट्स एग्जांपल? प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट को समझा है जरा रेज हैंड करो, और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। देव, प्राजक्ता, प्रथमेश, शुभम, पूर्वी, युवल, तस्मय। थैंक यू ऑल। Yes, Prajakta, what is your question? Unmute and have a discussion. सर मुझे वो नहीं समझा कि PH5 कैसे एग्जिस्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझा था तुम्हें? ड्रैगोस रूल का स्टेटमेंट, उसका मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर, वो समझ गया। हाँ, तो जब हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होगा, फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन जो है इट कैन नॉट प्रमोट 3s का इलेक्ट्रॉन टू 3d। ये इलेक्ट्रॉन को वो आगे प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे प्राजक्ता? नो सर। नहीं। तो PH5 बॉन्ड फॉर्म हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। द सेम थिंग इज रिटन अबव। सर जबकि क्लोरीन में पॉसिबल है, इसीलिए क्लोरीन में 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आएंगे तो PCl5 बनेगा। बोलो क्या बोल रहे थे? सर मुझे वो नहीं समझा कि हाइड्रोजन क्यों पास वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे उधर प्रमोट कर सकता। क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है या 2.5 के जितना है। तो वैसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या तो उससे कम है, वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकते। उसी को कहते हैं ड्रैगोस। ये से समझ आया।
सर सो हाइब्रिडाइजेशन से ही सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जरा फिर से बोलो। तो सर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस कोई एक एलिमेंट। हाँ, ओके, then only 5 half filled orbitals will be formed ना। यस सर। तो 5 half filled orbitals आएगा नहीं तो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। ओके सर। नेक्स्ट इज ग्रुप 16, उसके हाइड्राइड्स H2O, then H2S, H2SE, H2TE। जब मैं बात करूं वाटर की, इन केस ऑफ वाटर the hybridization is sp3 and bond angle is 104 degree. बट बाकी सब मॉलिक्यूल्स में the bond angle was only 90 degree, and वो तभी पॉसिबल है जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। बिकॉज तभी तीनों ऑर्बिटल्स px py pz 90 डिग्री पर होंगे और तब जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। सो बॉन्ड एंगल विल बी 90 एट दैट टाइम ओनली। तो इसी रीजन से अगर मैं आपसे कहूं H2S एग्जिस्ट होता है, H2S एग्जिस्ट, बट H4S एग्जिस्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सल्फर के 4 बॉन्ड बनते और हाइड्रोजन सल्फर को आगे प्रमोट नहीं करा सकता। सिमिलरली H6 यह भी एग्जिस्ट नहीं होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच रूल? ड्रैगॉस। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रैगॉस। इसको लिख लीजिए। ये स्पेशली ग्रुप 15 और 16 में देखने मिलेगा, बाकी कोई ग्रुप में यह देखने नहीं मिलेगा। और उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है, बाकी सब एलिमेंट में वह होता है। अब हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे बैंड रूल। व्हाट इज बैंड रूल, वो मैं लिखता हूं और उसको भी एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करूं। प्लीज नोट डाउन। सर हमें कौन से एलिमेंट्स के 2.5 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाय हार्ट करना पड़ेगा, राइट? ये लिखे है ना ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन। वो दोनों ही सिर्फ है। वही दोनों ज्यादातर पाए जाते हैं नेचर में। ओके सर। Now I am shifting this page. So the next point is
band rule. What is band rule? कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिट एलिमेंट है या एटम है वह उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा जिसमें परसेंटेज पी थोड़ा ज्यादा होगा और परसेंटेज एस थोड़ा कम होगा। मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupies hybrid orbital having more percentage P or less percentage S। तो वहां पर वह एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं डिस्कशन करूं दूसरा स्टेटमेंट तो वो है लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। लोन पेयर एंड double bond. It occupies hybrid orbital having less percentage P or more percentage S। उसमें वो ऑक्यूपाई। अभी यह रूल से हम लोग क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? So we can compare bond angle, bond energy and bond length। तो मैं यहाँ लिखता हूं this rule is used to compare we can compare bond energy, bond angle and bond length। लिखो। नेक्स्ट पेज पर हम आगे डिस्कशन करते हैं। चलो डन, आगे बढ़े। सो विल मूव। सो इस रूल को अगर हम कंक्लूड करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पर प्रेजेंट होगा? जहां पर परसेंटेज पी इज हाई, percentage S is low, that means bond energy is low,
bond angle is low and bond length is high. More electronegative atom वह पोजीशन पर ऑक्यूपाई होगा. लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड कहां ऑक्यूपाई होगा? लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड will be present on that orbital जहां percentage p will be less, percentage s is high. That means bond energy is high, bond angle is also high, and bond length is low. क्योंकि परसेंटेज एस ज्यादा होना इसका मतलब वह मॉलिक्यूल और वह ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, और न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा. Hence bond energy is high. Bond angle that will also be high and bond length will be low. अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा. यही सब पॉइंट्स को जरा प्लीज लिख लीजिए. नेक्स्ट पेज में मैं आगे डिस्कशन करता हूं. बेंड रूल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. वो टेबल में मैंने ऑलरेडी आपको सब लिखा के दिया हुआ है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, लोन पेयर या डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, बस उसका अभी हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आपको याद रहना चाहिए वो टेबल. बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट किया है. बाकी स्टूडेंट्स होमवर्क मुझे सबमिट करके दीजिए शाम को 5 बजे तक. और ये बार बार बोलना ना पड़े, जिनका अभी तक होमवर्क बाकी है they have to submit before 5. चलो मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं. CH4 and consider CH2F. CH4 की बात करिए सर, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3 H H H और यहां भी H. समझो कि यहाँ का जो एंगल है दैट इज θ1, यहाँ का एंगल इज θ2, यहाँ का एंगल इज θ3 एंड हियर द एंगल इज θ4. तो यह एंगल आपके लिए θ4. कार्बन और हाइड्रोजन, मैं कहूं हाइड्रोजन और एक ही टाइप का है, दैट मीन्स ऑल द एटम्स आर हाइड्रोजन ओनली. सिंस सभी के सभी एटम्स हाइड्रोजन के ही है, सिंस ऑल साइड एटम्स आर हाइड्रोजन, तो इसलिए इसमें बेंड रूल नहीं लगता. Therefore θ1 is equal to θ2
इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू थीटा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। सबके सब साइड एटम सेम ही है, इसीलिए एंगल जो है वो सेम ही है, बिकॉज वो सब एक ही टाइप का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर, ऐसा बेंट रूल कहता है, एंड हेंस ऑल द एंगल्स विल बी सेम। लेकिन जब हम CH2F2 की बात कर रहे हैं तो CH2F2 में कुछ तो डिफरेंस है, दो तरह के साइड एटम प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंगल विल चेंज। कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, नेक्स्ट पेज पर मैं उसका मॉलिक्यूल का डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज नोट डाउन। Now let's consider CH2F2. Here it is CH, here it is F, here also F, and here it is F. अभी एंगल्स सेम ही रखो, θ1, θ2, θ3, θ4, बट अब उनके वैल्यूज सेम नहीं होंगे, वैल्यूज विल बी डिफरेंट। यहां हम देख सकते हैं साइड एटम्स दो टाइप के, कौन से है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एवरीवन? फ्लोरीन। हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते थे, आपको पीरियोडिक टेबल में याद आएगा शायद, फोन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है, एम आई राइट? क्या आप लोगों को याद आया? तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का। तो जब मैं अगर बैंड रूल ऑब्जर्व करूं तो हमने क्या लिखा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा जिसमें परसेंटेज P विल बी हाई। दैट मीन्स यहां मैं लिख देता हूं, इस फ्लोरीन के केस में परसेंटेज P इज हाई, परसेंटेज S इज लो। दूसरे वे में बॉन्ड एंगल के बारे में क्या बोलोगे? बॉन्ड एंगल लो, बॉन्ड एनर्जी विल बी लो, एंड बॉन्ड लेंथ विल बी हाई। बॉन्ड लेंथ हाई हो जाए तो C और F का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एंगल जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू विल डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू विल डिक्रीज। अभी इसको मैं प्रॉपर साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन करूं तो बेंट ने ऐसा क्यों बोला? C और F में F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए मैं कहूं
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास रहेंगे, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रहेंगे? कार्बन के पास रहेंगे। फिर से एक बार शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन के पास रहेंगे। कार्बन और फ्लोरीन में किसके पास रहेंगे? तो वो रहेंगे फ्लोरीन के पास। हाइड्रोजन कहां पर प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन उस ऑर्बिटल पर रहेगा जहां पर परसेंटेज P इज लेस, परसेंटेज S इज मोर, so bond angle high, bond energy high, bond length low। तो C और H का बॉन्ड लेंथ CF के बॉन्ड लेंथ से कम होगा, बॉन्ड एंगल का वैल्यू हाई हो जाएगा। कैसे? तो आपने यह हाइड्रोजन चेक किया, सिमिलरली अब बाजू में भी देखो, तो वो भी तो हाइड्रोजन ही है। चेक करिए सभी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो, ऊपर वाला केस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। और फ्लोरीन वो भी एक फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब मुझे बताइए सभी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन कहाँ दिख रहा है आपको? CH के बीच में, या CH के बीच में, या CF के बीच में? सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। Where there will be more repulsion between electrons, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा? CH या CF या फिर CH CF होगा? थोड़ा सोच के बताइए। मैं आंसर बता रहा हूं CH के बीच में। क्यों? अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन नजदीक है, चेक करो। नो, द आंसर इज CH। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर ज्यादा है ना, तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो वो उसे स्प्रेड कर देगा। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के और नजदीक है, मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रिपल्शन इज वेरी हाई। और अगर रिपल्शन ज्यादा दिख रहा है हमें, तो वह बॉन्ड थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा और स्प्रेड हो गया, जबकि CF में इलेक्ट्रॉन्स दूर है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, फ्लोरीन की और ज्यादा है, तो ऑलरेडी वो लोग दूर है, रिपल्शन होगा जरूर, लेकिन इधर CH के बीच में जो रिपल्शन हो रहा था उसके कंपेयर में लेस रिपल्शन होगा। एक और केस देखो, CH और CF के बीच में, CH में C के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, CF में F के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब मैं यहां कहूंगा कि रिपल्शन तो CH और CF के बीच में भी होगा, बट दैट रिपल्शन विल बी मॉडरेट रिपल्शन। तो यह जो रिपल्शन है वो कैसा होगा? मॉडरेट। क्यों? क्योंकि भाई एक में इलेक्ट्रॉन नजदीक है न्यूक्लियस में और एक में इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस, इसीलिए मॉडरेट रिपल्शन होगा। तो मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन CH, उसके बाद CF, उसके बाद फ्लोरीन के केस में। तो अगर ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा, एंड हेंस इफ आई विल राइट डाउन बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, देन इट विल बी θ4। सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन सा होगा? θ2। और जहां मॉडरेट रिपल्शन होगा तो वह तो सेम हो जाएगा, एंड हेंस θ1 इज इक्वल टू θ2। इसलिए मैं कहूंगा θ1 और θ3 दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इसी को कहते हैं बेंट रूल। चलिए जरा बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द बेंट रूल? प्लीज रेज योर हैंड।
जिन जिन स्टूडेंट्स को बेंट रूल समझा जरा रेज हैंड करिए, और नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। सर आर्यन, आदित्य, निश्रा, प्रथम, रिदम, जारा, तस्मय, thank you all for your reply. Yes, बोलो Sir- क्या क्वेश्चन है? सर इलेक्ट्रॉन्स एफ की तरफ इसलिए आया क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? Yes. ओके सर। Yes, Zara, what is your question? Hello, sir. Can you please re-explain? I was disconnected. हाँ, जरा मुझे बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Hydrogen. वेरी गुड। वो जो पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर लिखा था ना, वो याद रख लेना, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्प्लेस्ड और शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन। तो CH में देखो 2 ब्लू डॉट मैंने C के और बनाया। कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Fluorine. फ्लोरीन। तो 2 ब्लू डॉट देखो फ्लोरीन के और। अभी ज्यादा रिपल्शन कहां पर हो? Where you will be having more repulsion, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होंगे। तो Yes, sir. कार्बन के नजदीक कहां पर है? CH में है, चेक करो। Yes, sir. तो इन लोगों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा। फिर फ्लोरीन का केस चेक करो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बहुत दूर है, तो वहां सबसे कम रिपल्शन हो। देन C और F के बीच में कंपेयर करो, तो यहाँ तुम्हें मॉडरेट रिपल्शन दिखेगा, θ1 और θ2, और इसी को हम लोग कहते हैं बैंड। नाउ अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. यस। रिदम अंडरस्टूड? Yes, sir. भूमि अंडरस्टूड? यस भूमि, ठीक है। Yes, sir. तो अगर मैं इसी को बेंट रूल से एक्सप्लेन करूं तो बेंट रूल क्या कहता था सभी स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ बेंट रूल? जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उसमें बॉन्ड एंगल कम होगा। सो फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चेक करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड हेंस θ2 इज लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जबकि CH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट मीन्स परसेंटेज P जो है वो कम है। इफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज P इज लेस, परसेंटेज S इज मोर, एंड हेंस बॉन्ड एंगल विल बी हाई। इसलिए हमें उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा मिला। ये मैंने बेंट रूल से आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे यह क्वेश्चन। सर परसेंटेज PN से सर आपने ये कैसे ये किया? क्या बोल रहे हो? सर मैं सर अगर परसेंटेज P कम है S ज्यादा है तो सर मैं हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सर बॉन्ड एंगल कम होगा? अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन एक्सप्लेन किया, वो समझा तुम्हें? हाँ सर वो समझा। तो वही बेंट ने उसको समराइज कर दिया कि बार बार ऐसा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन करके हम स्टडी नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा ये चेक कर लो, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें परसेंटेज P हाई, परसेंटेज S लो, बॉन्ड एंगल लो, बॉन्ड एनर्जी लो, बॉन्ड लेंथ हाई। ये उसको समराइज कर दिया। ओके सर मतलब P% ज्यादा है करके वो एटम के न्यूक्लियस से दूर रहेगा, इसके लिए उनके बीच में डिस्टेंस भी दूर रहेगा सर, वैसे सेंस में। हाँ, ओके और ये सब ऑर्बिटल्स sp3 ही है। यस ऑल द ऑर्बिटल्स आर sp3, बट उसमें P का वैल्यू थोड़ा बहुत, अभी एक में समझो 25 है, तो अभी ज्यादा P होने का मतलब 27 होगा या 26 होगा, और हाइड्रोजन वाले में 24 होगा या 23 होगा। ओके सर ये सर समझा। ठीक है, चलो लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स।
अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मस्त सम है वो, JEE का सम है वो। Now I am shifting this page. मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, bond length of n single bond in N2O3 and N2O। तो क्वेश्चन ऐसा ही था, आपके कन्वीनियंस के लिए अभी हमें स्ट्रक्चर्स नहीं पता, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं। पहले हम N2O3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ऐसा देते नहीं है एग्जाम में, दे डोंट गिव द स्ट्रक्चर, ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करने। सर हमें आएगा, हाँ आ जाएगा। Here the NN का बॉन्ड लेंथ इज x1। एक और N सिंगल बॉन्ड N, then this is double bond हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, and it is coordinate bond. Here the bond length का value is x1 and here the bond length का value is x2. तो JEE में यही पूछा था, what is the relationship between x1 and x2? कौन ज्यादा है, x1 ज्यादा है या x2 ज्यादा? तो आप पूरा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो, दोनों ही मॉलिक्यूल का। तो मैं कहूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, yes or no? All Yes. students tell me, this part and this part is same or different? सेम सेम सर। सेम। तो फिर कंपेयर किसके बेसिस पर करो? जो सर बचा हुआ बाकी पार्ट है बचा हुआ पार्ट है। बचा हुआ दैट इज लोन पेयर एंड ऑक्सीजन के ऊपर। अब मुझे बताओ लोन पेयर कहां पर ऑक्यूपाई होगा? वेयर परसेंटेज एस विल बी मोर और लेस? मोर ये याद करो, चेक करो। मोर लोन पेयर विल परसेंटेज ऑक्यूपाई, परसेंटेज एस विल बी मोर, और परसेंटेज एस इज मोर, परसेंटेज पी इज लेस। तो नाइट्रोजन का क्या केस होगा? नाइट्रोजन में उल्टा। अरे भाई अगर लोन पेयर में परसेंटेज एस हाई है तो बाय डिफॉल्ट नाइट्रोजन में परसेंटेज एस विल बी लो, परसेंटेज पी विल बी हाई। तुरंत बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ का वैल्यू हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। एग्री एवरीवन? डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस सर। अभी दूसरे वाले केस में तो ऑक्सीजन है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो एक लोन पेयर और ऑक्सीजन से कंपेयर हो गया, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा मिल गया मुझे? x1 का ज्यादा मिला और x2 का कम मिला। सर वो कैसे मींस ऑक्सीजन का आपने कैसे कंपेयर किया? इसको ऑक्सीजन का आपने कैसे मींस बोला कि वो x1 ज्यादा होगा? कहां पर? सर मुझे उतना तक समझा कि x1 बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, पर आपने ऑक्सीजन के वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसे ढूंढा x2 का वैल्यू? वो डायरेक्ट एक का वैल्यू मिल गया ना, तो उसमें कंपैरिजन हो गया। मुझे तो इधर ही पता चल गया ना लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर लोन पेयर इज प्रेजेंट, जहाँ एस परसेंटेज ज्यादा है। खत्म। और यहाँ लोन पेयर नहीं है ना, यहाँ तो बॉन्ड पेयर है।
तो सर हमें पता है कि एक का जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो ऑटोमेटिकली दूसरे का मैं कम मानना हाँ, क्योंकि वहां लोन पेयर नहीं है ना, है। ओके सर। और सर बिकॉज एग्जैक्टली लोन पेयर क्वेश्चन में इज, पूछा क्या है? ये x1 और x2 के बीच में रिलेशन ढूंढना। ओके सर। You have to find out the relationship between x1 and x2. So lone pair will occupy that orbital in which percentage s is high, percentage p is low. तो नाइट्रोजन में उल्टा केस हो जाएगा, नाइट्रोजन में परसेंटेज एस लो, परसेंटेज पी हाई, दैट मींस बॉन्ड लेंथ। नाइट्रोजन में कैसे ये होगा सर, क्योंकि नाइट्रोजन तो एटम जैसा होगा। हाँ बराबर है। अभी ये बॉन्ड में जब तुम कंपेयर करोगे तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा ना, यस सर। करेक्ट। तो बाकी बॉन्ड पे भी तो अफेक्ट होगा। अगर यस सर। ये एस का वैल्यू ज्यादा लेके जाएगा तो बाय डिफॉल्ट एन के पास तो कम बचेगा ना एस, यस सर, बाकी सबके पास कम बचेगा सर, और करेक्ट। वो भी डबल बॉन्ड है वहां पे, तो सर बचेगा तो कम ही बचेगा। हाँ समझा था, समझा। ठीक है। So we say that therefore bond length का order x1 is greater than x2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ सॉल्यूशन। लिख लीजिए प्लीज। करेक्ट। चलो आगे बढ़ू। नाउ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, उसके कई सारे रीजन है। ड्रैगोस रूल होगा किसी में कोवैलेंसी मैच नहीं करेगा, किसी में रिपल्शन होगा, कभी सब में अलग अलग रीजन है। तो वो हम याद रखना बहुत डिफिकल्ट, उससे अच्छा ये जरूर याद रख सकते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं, और उसके अलावा जितने मॉलिक्यूल्स है वो सब एग्जिस्ट होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज existence and non-existence of molecules। तो चलो उसे स्टडी करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं होते, some molecules do not exist। उसके बहुत सारे रीजन है, ऑलरेडी मैंने कहा, एक और बार बोल देता हूँ। ड्यू टू ड्रैगोस रूल, या तो कोवैलेंसी रूल, या तो फिर रिपल्शन। जैसे अभी मैं बोलता हूँ यहाँ OF4, तो इसमें कोवैलेंसी रूल लगेगा, बट अभी सब में रूल के साथ याद रखना डिफिकल्ट है, तो डायरेक्ट यही मॉलिक्यूल से याद रखो। OF6 देन SH4 SH6, इन दोनों में ड्रैगोस रूल लग गया। NH5 में कोवैलेंसी रूल लगा, देन अगेन PH5 ड्रैगोस रूल, NCl5 कोवैलेंसी रूल, HFO2 HFO3 HFO4
then XCH4, Dragos rule, FCl3, repulsion rule, AlCl6 minus 3, repulsion rule, AlBr6 minus 3, repulsion rule, CCl6 minus 2, covalency rule, SiCl6 minus 2, repulsion rule, SiBr6 minus 2, repulsion rule, BBr4 minus, repulsion, Bi5 minus, repulsion, Pi6 minus, repulsion, SCl6 repulsion, SBr6 repulsion, Si6 repulsion, IBr5 repulsion, ICl7 repulsion, IBr7 repulsion rule, ClBr7 repulsion. तो इस तरह से यह मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं। कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स है जो एग्जिस्ट होते हैं, जो हमने इतने लिखे, उसके अलावा कुछ स्पेशल, तो वो हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सम मॉलिक्यूल्स विल एग्जिस्ट, दिस यू हैव टू लर्न। ये आपको लर्न करना है। तो सर इसका रीजन कभी हमसे नहीं पूछेंगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं होता? नो, नो प्राजक्ता, देयर इज नो नीड। चलो मैं आगे बढ़ूं। 1 second सर। चलो नेक्स्ट इज एग्जिस्ट। कुछ मॉलिक्यूल्स है जो एग्जिस्ट होते हैं, जो हमने लिखे वो प्लस ही है। इसका लिस्ट छोटा है। SiF6 minus 2, AlF6 minus 3, AlBr4 minus, BH4 minus, PCl6 minus. So this molecule exists.
सिलेबस यहाँ तक है, तो योर सिलेबस इज ओवर। कौन सा टेस्ट का? माइनर टेस्ट 4 माइनर टेस्ट 4 which one? 4. So that syllabus is over. सर ये सर Correct. पहले जो लिखे कॉम्पाउंड्स वो भी मतलब कि जो भी कहीं भी हमने नाम लिखा है वो राइट? Correct. So almost 1.5 week before I have completed your syllabus. So now it is your turn, your duty to revise the syllabus, solve as many questions as possible and get good marks. ठीक है? अच्छा, आपने मुझे तो homework मैग्नीशियम, हाँ, सर होमवर्क क्या है आज का? आपने मुझे MgBr2 और MgI2 वाला शायद एक क्वेश्चन पूछा था। ये जो सर वो एसीटोन में क्यों एसीटोन soluble वाला। होता है? ये सर यस सर। Why it is soluble in acetone? तो उसका एक्चुअली आंसर है 4th ऑप्शन, और हमारे मॉड्यूल में शायद सेकंड आंसर दिया है। ये Am I सर right? मॉड्यूल में सर कोवैलेंट आंसर दिया सर उसमें। हाँ, बट मैंने बहुत सारे रेफरेंस बुक में चेक किया, सभी जगह चेक किया, तो उसका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। जिसका Okay, एक्चुअल sir. आंसर है हाई सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ Br माइनस एंड I माइनस। ये सभी जगह लिखा हुआ है। सो दैट इज एन एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन। आप भी गूगल पे डालोगे वो क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, रेफरेंस बुक में भी अवेलेबल है, सभी जगह यही लिखा हुआ है, ड्यू टू हाई सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ Br माइनस एंड I माइनस, hence it is soluble, not due to covalent nature. So उसका आंसर 4th ऑप्शन आ रहा है, Okay, बिकॉज sir. एसीटोन इज पोलर, और वह जो कंपाउंड है ये MgI2 और MgBr2 वह कंपाउंड भी नेचर में आयोनिक ही है, करेक्ट, बट उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट। Yes, sir. ठीक है, तो वो एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, उसका एक्चुअल आंसर 4th ऑप्शन। Okay, sir. ठीक है, आज का होमवर्क आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कहाँ से है चेक कर लेते एक बार। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन इज फ्रॉम हमें क्वेश्चन करने हैं 54 से लेके आप 78 तक करेंगे, 54 to 78। ठीक है, उसका डाउट डिस्कशन में सैटरडे वाले डाउट लेक्चर में कर दूं, और पिछला भी शायद कुछ बचा था डाउट डिस्कशन का। Yes, sir. हाँ, सो दैट आल्सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर 54 to 78। मैं अभी लेक्चर स्टॉप करूं, आपका सिलेबस कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट का। हेलो, विल स्टॉप दिस सेशन। थैंक यू ऑल।